दोस्तों लास्ट क्लास में हमने डायबिटिक मेलिटस के बारे में देखा था। तो डायबिटिक मेलिटस, तो क्या होता है डायबिटिक मेलिटस? एक इंसुलिन डेफिशिएंसी के वजह से लिए इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से लिए जो बॉडी सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलता है, वो कंडीशन को हमने डायबिटिस मेलिटस बोलते हैं। तो वो कंडीशन को हमने क्या बोलते हैं? डायबिटिक मेलिटस बोलते हैं। ठीक है। सो डायबिटिक मेलिटस में type 1 diabetic mellitus, type 2 diabetic mellitus and type 3 diabetic mellitus. Okay, three types of diabetic mellitus are we are already seen. This pathophysiological condition भी देखा था हमने, pathophysiological condition. So that because of the lack of insulin, so because of the lack of insulin, so what happens? Body cells are unable to use of the glucose, so glucose remains in the blood, so that shows hyperglycemia. Then kidney trying to expel out glucose from the urine, so that is the polyuria, and instead of glucose, body trying to break down the fat, so that causes the ketone bodies. So the ketone bodies is HDK in nature. So diabetic ketoacidosis, complication of diabetes that may lead to the diabetic ketoacidosis. Okay, this is regarding the pathophysiological condition. Okay. Next हमने देखा था clinical symptoms of diabetic mellitus. Okay. The clinical symptoms are very important. What are the three P's of classical sign of or cardinal sign of diabetic mellitus? Polyuria, polyphagia, polydipsia. Okay. Polyuria, excessive urination; polyphagia, excessive hunger; and polydipsia. Okay. Polydipsia, increased thirst. Okay. Increased thirst होता है। क्यों पॉलीयूरिया क्यों होता है? बोला किडनी ट्राइंग टू एक्सपेल आउट ग्लूकोज थ्रू द यूरिन, सो किडनी इज रिपीटेडली पासिंग द यूरिन. ओके. पॉलीफेजिया बिकॉज ऑफ बॉडी सेल्स आर lack from the glucose, so that's why they are very hungry. And next polydipsia, because of the excessive urine loss through the body, so that causes the excessive hunger. Okay. Other than this, hyperglycemia, weight loss, because of weight loss is also occurs. Then delayed wound healing. Why delayed wound healing? This glucose in the body that causes the accumulate on the wound part, so that compresses the below cells. Then that block the blood supply and the nerve supply, blood and nutrient supply to the cells, so that causes necrosis. Okay, delayed wound healing, either necrosis. Okay. Other than this, decreased peripheral circulation. Peripheral circulation धीरे धीरे कम होने चालू होता है. ओके. नेक्स्ट इस्टेमिया होने के चांसेस होता है. डायबिटिक मेलिटस में इस्टेमिया मीन्स ट्रांसिएंट ब्लड सप्लाई. इस्टेमिया मेनली इन दी कोरोनरी आर्टरी. कोरोनरी आर्टरी पे इस्टेमिया होने के चांसेस होते हैं. कोरोनरी आर्टरी में तो ग्लूकोज blood is circulated in the heart, then the glucose part is attached and the coronary artery, so that coronary artery movement becomes very small. Okay. So vision loss, रेटिनोपैथी. ओके. रेटिनोपैथी भी हो सकती है विजन लॉस, क्योंकि आंख में तो छोटा सा छोटा ब्लड वेसल होता है, वो छोटा सा छोटा ब्लड वेसल ब्लॉक होने से विजन लॉस होने का चांसेस होता है. ओके. इस तरीके से हमने साइन एंड सिम्टम्स के बारे में देखा था. हम आज देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ डायबिटिक मेलिटस. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ डायबिटिक मेलिटस. ओके. हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में देखा तो डायबिटिक मेलिटस में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन सबसे पहला एज यूजुअल सेम रूटीन हिस्ट्री कलेक्शन करना है. So complaints of patient, what are the complaints of patient history, physical examination करना है. Okay, routine blood investigation करना है. Okay, history, physical examination, routine blood investigation करना है. So main important for the definitive diagnostic evaluation, routine blood investigation में अभी अब blood में चेक करते हैं fasting blood sugar and postprandial blood sugar. Okay, fasting blood sugar and postprandial blood sugar. Okay. हम हॉस्पिटल में सब हॉस्पिटल चेक करते हैं, आपको सभी को मालूम है. बट द मोस्ट डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज that is called as GTT, glucose tolerance test. That is called as glucose tolerance test. What procedure is conducted in the glucose tolerance test? The glucose tolerance test में क्या करते हैं पेशेंट को, अगर कल पेशेंट को GTT इवैल्यूएशन करना है, आज रात में से कुछ पेशेंट को कुछ नहीं खिलाने का, मतलब 8 से 12 घंटे तक पेशेंट एम्प्टी रहने का.
ओके, सुबह में जीटीटी चेक करना है, जो आज रात में जो खाना खाएगा वही लास्ट है, बीच में कुछ खाना नहीं चाहिए रात में। ओके, so after the 8 to 12 hours of fasting of the patient, then early morning administer into 100 gram of 100 gram of 100 gram of carbohydrate गोली देना, 100 gram of carbohydrate tablet। ओके, प्रोवाइड 100 gram of carbohydrate tablet। ओके, 100 gram का कार्बोहाइड्रेट गोली खिलाना है पेशेंट को। ओके, सो खिलाने के बाद क्या करना है, ये एक्चुअली 3 दिन कंटिन्यू करना है, एक दिन नहीं 3 दिन कंटिन्यू क्या करना है पेशेंट को, 3 दिन में लगातार ये इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चलेगा डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक एवल्यूशन। ओके, देन ये देने के बाद टू कलेक्ट द सैंपल टू एनालाइज सीरम ग्लूकोज, ये देने के बाद खाली पेट नहीं पेशेंट तो तब ब्लड निकाल के ये चेक करना है फास्टिंग ब्लड शुगर। अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 70 से ज़्यादा है, 70 से ज़्यादा है, सो फास्टिंग ब्लड शुगर level is more than 70 mg per dl, so that indicates hyperglycemia। 70 mg, ठीक है, 70 mg के ज़्यादा है तो सो हाइपरग्लाइसेमिया बोल सकते हैं। ओके, अंडर ब्लड शुगर पीपीपीएस 2 घंटे के बाद चेक करना है पीपीपीएस। ओके, पीपीपीएस हमने चेक किया तो ठीक है, अगर ये 140 के ज़्यादा है तो 140 mg से ज़्यादा है तो तभी भी हम क्या बोल सकते हैं, more than 140 mg per year, so that indicates diabetes mellitus indicate करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट हमने डायग्नोस्टिक के बारे में हम देख रहे तो समझ में ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एक कार्बोहाइड्रेट गोली आता है, कार्बोहाइड्रेट गोली खिलाना है पेशेंट को, फिर बाद में खिलाने के बाद पेशेंट को ब्लड निकालना है, फिर बाद में 2 घंटे के बाद फिर से ये खिलाना है, खिला के फिर से 2 घंटे के बाद ब्लड निकालना है। ब्लड निकालने के बाद अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 70 से ज़्यादा है और पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर 140 से ज़्यादा है तो हमने डायबिटीज मेलिटस डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वन मोर इम्पोर्टेंट डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज HbA1c, दैट इज कॉल्ड एज HbA1c। ओके, HbA1c, ओके, HbA1c ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन, ओके, ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन। Hb means hemoglobin, A1c means one of the protein substances। ओके, Hb मतलब हीमोग्लोबिन है, A1c मतलब प्रोटीन सब्सटेंस है। हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लूकोज का डिपोजिशन होने चालू होता है। ओके, सो नॉर्मली रहता है, अगर इसका लेवल बढ़ गए तो हमने बोल सकते हैं डायबिटीज मेलिटस है। ओके, ये ब्लड पिगमेंट दैट कैरीज ऑक्सीजन एंड ब्लड विद ग्लूकोज। ओके, HbA1c एक प्रोटीन का ये ब्लड पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन कंटेंट है, ब्लड पिगमेंट है, प्रोटीन सब्सटेंस है। HbA1c है, इट इज अ ब्लड पिगमेंट दैट कैरीज ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन रहता है इसलिए ऑक्सीजन कैरी करते हैं, उसके साथ में ग्लूकोज भी कैरी करते हैं। So normally HbA1c level 4 to 6% is in our body. The normal HbA1c level in our body is 4 to 6. This is a very important definitive diagnostic evaluation of the diabetic mellitus. Okay. So hemoglobin में कितना परसेंटेज का ग्लूकोज ट्रांसफर हो रहा है बॉडी के अंदर, तो अगर हाइपरग्लाइसेमिया कंटिन्यू है तो हीमोग्लोबिन में भी ज़्यादा ये HbA1c आने के चांसेस होता है। अगर ये ज़्यादा आ गया दिक्कत है बॉडी में, सो इसलिए HbA1c चेक कर रहा है, इसे डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो मोर देन 6% से ज़्यादा अगर HbA1c आ रहा है तो ये इंडिकेट करता है डायबिटिक मेलिटस। इससे हमने क्या बोल सकते हैं, हमने डायबिटिक मेलिटस बोल सकते हैं। ओके, सो दिस इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में GTT एक, HbA1c। नेक्स्ट हमने स्कूल में कॉलेज में पढ़ाया है डायबिटीज मेलिटस चेक करने के लिए हम सभी का भी चेक किया है। स्कूल में पहले चेक करता था, दैट इज यूरिन में चेक करता है, सो दैट इज अ बेनेडिक्ट टेस्ट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बेनेडिक्ट टेस्ट, दैट इज कॉल्ड बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट एक टेस्ट है, उसमें भी
डायरेक्ट से नहीं ये देखने के लिए वो बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं एक्चुअली बेनेडिक्ट टेस्ट में यूरिन सैंपल लेने का है, कोई पर्सन्स का यूरिन सैंपल लेके, ठीक है, एक बल्ब में यूरिन डाल के और बल्ब में केमिकल सब्सटेंसेस रहता है, बर्न करना है। बर्न करने के बाद डिपेंड्स अपॉन द कलर देखना है, ब्लू कलर, रेड कलर, येलो कलर, पर्पल कलर, इस टाइप का कलर आता है। ये कलर इंडिकेट करता है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, माइल्ड है, मॉडरेट है, इस तरीके से। ओके, सो मैं प्रोसीजर भी थोड़ा बहुत समझाने के लिए कोशिश करूंगा, देख लीजिए। बेंडिक टेस्ट, सो बेंडिक टेस्ट इज वन ऑफ द प्रोसीजर विच इज यूजफुल टू डिटेक्ट द यूरिन शुगर लेवल। यूरिन में शुगर है, यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है नहीं है, और डायबिटीज डिटेक्ट करने में यूज करते हैं। ओके, सो एक्चुअली बेंडिक टेस्ट ट्यूब कंसिस्टिंग ऑफ बेंडिक टेस्ट ट्यूब, सोडियम कार्बोनेट एंड कॉपर सल्फेट, सोडियम सिट्रेट। सोडियम बेंडिक एक बल्ब आता है, ये बल्ब में सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, केमिकल यूज करते हैं, ठीक है, सोडियम साइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम साइट्रेट एंड देन कॉपर सल्फेट। इस तरीके से केमिकल होता है ये बल्ब में। ओके, बेंडिक टेस्ट में द टेस्ट ट्यूब कंसिस्टिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट केमिकल्स। ओके, देन कलेक्ट द पेशेंट यूरिन इन अनदर बॉटल। दूसरा बॉटल में पेशेंट को बोल देना है थोड़ा यूरिन लेके आओ बॉटल में। ओके, आने के बाद क्या करना है, द ड्रॉप्स ओनली द प्योर 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन इज एडेड इन दिस सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन में 4 to 5 ड्रॉप्स नहीं, ज़्यादा 1-2 ml डालते हैं। ठीक है, तो 2 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन इज डिप्ड इनटू दिस टेस्ट ट्यूब। ये टेस्ट ट्यूब में डिप करना है, देन दिस टेस्ट ट्यूब इज बर्न ऑन द लैंप के ऊपर बर्न करना है। ऐसा टेस्ट ट्यूब होल्डर आता है, होल्डर पकड़ के वो बर्न करना है। सो व्हाट हैपेंस, ओके, डिपेंड्स अपॉन द कलर। ओके, डिपेंड्स अपॉन द कलर। इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं हम, डिपेंड्स अपॉन द कलर। Interpretation is depends upon the color. Interpretation is on the basis of color of the test tube. Test tube का कलर कौन सा आता है? Okay. For example, after burning of 5 to 7 to 8 मिनट, 7 से 8 मिनट के बाद वो बर्न करना है। बर्न करने के बाद अगर एक ट्यूब का कलर ब्राइट रेड हो गया है, फॉर एग्जाम्पल द कलर ऑफ द ट्यूब इज ब्राइट रेड, सो दैट indicates what? Color of the tube is bright red, that indicates positive for patient is just okay, positive for diabetes mellitus है, ऐसे इंडिकेट करता है, ब्राइट रेड में चलेगा ऐसा। ओके, सो अगर ब्लू कलर में, अगर वो ब्लू कलर रहेगा तो ब्लू कलर दैट इज नेगेटिव रिजल्ट। अगर ब्लू कलर रहेगा तो इसमें यूरिन में शुगर नहीं है, डायबिटिक नहीं है पेशेंट। अगर वो यूरिन में शुगर होता है तो वो ब्राइट रेड कलर में चेंज होता है। ओके, अगर ग्रीन कलर में हो गए तो ग्रीन कलर हो गए तो ग्रीन कलर हो गए तो दैट इंडिकेट्स रेड कलर, सो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, देख लीजिए। The depends upon the color of the tube, so identify the whether the patient is positive or negative. Okay, whether the color of the test tube is turned into bright red color, that indicates the positive for diabetic mellitus. The color of this test tube turned into the blue color, that is a negative. Either green color, okay, green color that indicates the trace amount, green or yellowish green दिखते हैं। Okay, or either it indicates the orange color. Okay, अगर ऑरेंज कलर में टर्न होगा, अगर it turns into orange color, that indicates the moderate glucose present in the moderate glucose. Okay, so moderate glucose present है, इस तरीके से इंडिकेशन करता है। ओके, moderate glucose of the patient में moderately glucose present। Okay, this is regarding the genetic test. Three most important tests for the diagnosis of diabetes mellitus. So you can understand or remember only 3 tests: GTT, glucose tolerance test, Benedict test, SBA. Okay.
Nowadays, the all hospitals have the rapid test like immediately collect the blood, then check for the FPS and PPPS. Either the glucometers are available. Okay, glucometer available होता है, सब लोग घर पे चेक करवाते हैं. ओके, ये डायग्नोस्टिक करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है. जो अगर एग्जाम में पूछा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज, दैट इज अ GTT, Benedict test, and HbA1c. HbA1c is the most accurate diagnostic evaluation for the diabetes mellitus. Okay, so this is regarding the diagnostic evaluation. Next is complication of DM. Complications of DM. Okay, डायबिटीज मेलिटस से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, मैं लास्ट क्लास में बोला हूँ. लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस रिगार्डिंग द कॉम्प्लिकेशन. सो there are two types of complications. These complications are acute complications and chronic complications. Acute complications and chronic complications. Okay, two types of complication develop होता है, acute complication and chronic complication. So acute में क्या होता है? Acute means sudden, chronic means it's a gradual, बहुत लंबे दिन के बाद. Okay, acute में क्या क्या complication है? These acute complications are diabetic ketoacidosis. Suddenly डायबिटिक कीटोसिस, फैट पेट्रोल की कीटोन बॉडीज प्रोडक्शन होता है, डीके हो सकता है. ओके, और हाइपरग्लाइसेमिया, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन इज हाइपरग्लाइसेमिया. हाइपरग्लाइसेमिया मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 400. ओके, मोर देन 400 जाने चालू होता है, मोर देन 400 आता है ब्लड ग्लूकोज लेवल. तो हाइपरग्लाइसेमिया, डायबिटिक कीटोसिस. और भी देखा था मैं हाइपर ऑस्मोलर, हाइपरग्लाइसेमिक, नॉन कीटोस्टोटिक just in a hyperglycemic, hyperosmolar, non-ketotic syndrome. ओके, ये किस में होता है? ये टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस का कॉम्प्लिकेशन है, HSNS. ओके, मतलब उसमें इंसुलिन होता है पर बॉडी सेल्स यूज नहीं करते, उस टाइम HSNS होता है. अगर इंसुलिन कम है तो डायबिटिक कीटोसिस होता है. तो दोनों में से हाइपरग्लाइसेमिया कॉमनली होता है. क्रोनिक में क्या होता है? क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस लाइक, क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है? माइक्रोवेस्कुलर डिसीज, microvascular complication of microvascular disease and macrovascular disease. Macrovascular disease, इस तरह से डिसीज होता है माइक्रोवेस्कुलर एंड मैक्रोवेस्कुलर डिसीज. ओके, so diabetic ketosis, what is diabetic ketosis? It is a due to the absence of carbohydrate, the carbohydrate is unable to break down from carbohydrate to glucose. So glucose is unable to use by the body cells. So that's why for compensation mechanism, the bodies try to break the fat, stored fat. Then the fat is break down. Then that produces the ketone bodies. So that complication is called as diabetic ketosis. Hyperglycemia means it is increase in the glucose level in the blood more than 400 mg. Okay, hyperglycemic, hyperosmolar, non-insulin syndrome means with the presence of insulin. Okay, with the presence of insulin. Okay, non-ketotic syndrome. Okay, without ketone bodies, the blood glucose level are increased, means डीके नहीं होता है, बट हाइपरऑस्मोलर ब्लड का ऑस्मोलरिटी बढ़ जाता है. सो इसको हमने क्या बोलते हैं? HSNS बोलते हैं. माइक्रोवेस्कुलर, मैक्रोवेस्कुलर का सिम्टम्स कौन सा जगह में होता है, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई करेंगे. थैंक यू वेरी मच.